बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम टेक्स्ट बुक का जो लेसन नंबर 12 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफ़ा और दुनिया में ग़ज़ा की फ़राहमी। टेक्स्ट बुक का ये 10th क्लास लेसन नंबर 12 है। पेज नंबर ओपन करें आप 139, इनफैक्ट 139 पेज नंबर है। यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफ़ा और दुनिया में खुराक की या ग़ज़ा की फ़राहमी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पेज नंबर 140 ओपन करना है। पेज नंबर है 140। पैसेज नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, दोनों पैसेजेस की फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. Great pressure is being placed on arable land, water, energy, and biological resources as the world population grows. The food problem will become increasingly severe. The most vulnerable will be population in developing countries. The per capita availability, कैप्सिया का मानी होता है फीकस यानी हर एक। कैप्सिया availability of food grains has been declining for the past 25 years, certainly with 250,000 people being added to the world population each day. The need for grains and all other food will reach unprecedented levels. Below world population and its growth trends are given. Number 1 है below world population and its growth trends are given. 10,000 years ago 10 million people. Number 2, by 1850 population was 1 billion. 80 more years to reach 2 billion in 1930. 45 years it doubled again. 4 billion in 1975, 12 years to reach 5 billion 1987, 6 billion in 1999. By the year 2020 there will be 8 billion. पैसेज नंबर 2 की रीडिंग है। There are about quarter of a billion people added to the planet per day. The exponential growth is mostly happening in developing nations. पैसेज नंबर 3 की भी रीडिंग साथ ही कर लेते हैं। पैसेज नंबर 3, more than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. As the human population grows, the requirements for these resources also grow.
even if नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है 141. Even if these resources are never depleted on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. The shortage of productive fertile land combined with the decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. बेटा अब हमने पैसेज नंबर 1, 2 और 3 की इंग्लिश रीडिंग की है. इसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में अवेयरनेस देंगे कि इसके वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं. English text, इंग्लिश टेक्स्ट है. यूनिट नंबर है हमारा 12. टुडेज टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक है हमारा population growth and world's food supplies. POPULATION, population growth and world food supplies. आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फ़राहमी. आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फ़राहमी. पैसेज नंबर 1, 2 एंड 3 के बेटा वर्ड्स मीनिंग अभी आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड कराए जाएंगे. हेडिंग दे लें, वर्ड्स मीनिंग्स. पैसेज नंबर 1, 2 एंड 3 के वर्ड्स मीनिंग है. वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे अलार्मिंग, ALARMING. नंबर 2 पे ग्रोथ, GROWTH. नंबर 3 पे कॉजिंग, CAUSING. नंबर 4 पे है इकोनॉमिक, ECONOMIC. नंबर 5 पे incessant, NCESSANT.
प्रॉब्लम्स, PROBLEM। सबसे पहले नंबर 1 पे बेटा देखें, अलार्मिंग का मानी होता है खौफनाक। नेक्स्ट वन जो है ग्रोथ, इजाफा। नंबर 3 कॉजिंग, इसका मानी होता है सबब, वजह या बायस भी बोल सकते हैं इसको। इकोनॉमिक बोलते हैं मौशी को। इंसेसेंट बोलते हैं, इंसेसेंट मुसलसल जारी, मुसलसल जारी। प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स है मुश्किलात, प्रॉब्लम्स मुश्किलात। शुरू से देखते हैं बेटा। क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश टेक्स्ट है। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़ज़ा की फ़रामी। पैसेज नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहले है अलार्मिंग, इसका मानी होता है खौफनाक। ग्रोथ इजाफा, कॉजिंग बायस सबब या वजह। इकोनॉमिक बोलते हैं, इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं इसको। मौशी, इंसेसेंट बोलते हैं मुसलसल जारी। प्रॉब्लम्स बोलते हैं मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स बोलते हैं मुश्किलात को। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है प्रेशर, PRESS URE, प्रेशर दबाव, प्रेशर दबाव। मिलियन 10 लाख, MILLION, मिलियन का मीनिंग होता है 10 लाख। नंबर 9 है, नंबर 9 हैपनिंग, HAPPENING, हैपनिंग मीन्स होता है वाक़या हो रहा है, वाक़या हो रहा है। नंबर 10 है एडिड, इजाफा हुआ, ADDED, इजाफा हुआ। नंबर 11 पे रिसोर्सेज, RESOURCES, रिसोर्सेज बोलते हैं ज़राए को। नंबर 12 पे आगे शॉर्टेज, किल्लत या कमी, SHORTAGE, इसको बोलते हैं किल्लत या कमी। नंबर 13 पे है डेप्लेटेड, बोलते हैं कम हुए, DEPLETED, डेप्लेटेड कमी हुई। नंबर 14, 15 एंड देन लास्ट में नंबर 16 आएगा। नंबर 14 है बेटा एडिक्यूट, बोलते हैं मुनासिब या काफ़ी, ADQUATE, मुनासिब या काफ़ी। सप्लाई बोलते हैं फरहमी को, SUPPLY, सप्लाई बोलते हैं फरहमी को। एम्पल बोलते हैं काफ़ी को, AMPLE, एम्पल बोलते हैं काफ़ी को। ये बेटा पैसेज नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग थे। अब शुरू से इसके वर्ड्स मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं।
क्लास है बेटा हमारी 10th सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट बुक है, यूनिट नंबर 12 है। टॉपिक है टुडेस टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फरहमी। पैसेज नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले आ जाएगा अलार्मिंग, खौफनाक। ग्रोथ बोलते हैं इजाफा को, कॉजिंग बोलते हैं बायस, वजह या सबब। इकोनॉमिक बोलते हैं मौशी को, इंसेसेंट बोलते हैं मसलसिल जारी रही। प्रॉब्लम्स बोलते हैं मुश्किलात को, प्रेशर बोलते हैं दबाव को, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। हैपनिंग का मानी होता है वाक़या हो रहा या वकूअ पज़ीर हो रहा है। एडिड मैंने इजाफा हुआ या इजाफा किया। शॉर्टेज रिसोर्सेज ज़राए या वसाइल। शॉर्टेज बोलते हैं कमी या किल्लत को। डिप्लेटेड बोलते हैं कमी हुई। एडिक्यूट बोलते हैं मुनासिब या काफ़ी। सप्लाई का मीनिंग होता है फरहमी। एम्पल का मानी होता है काफ़ी। एम्पल का मानी होता है काफ़ी। ये बेटा पैसेज नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम पैसेज नंबर 1, 2 और 3 की इंग्लिश रीडिंग के साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसके लिए बेटा आपने पेज नंबर ओपन करना है 139, इनफैक्ट 140, 139 के ऊपर इसके टॉपिक का नाम है यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। पैसेज नंबर 1 है The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. तकरीबन तमाम बरआज़मों में आबादी में होने वाला खौफनाक और मुसलसल बढ़ता हुआ इजाफा संजीदा नौइयत के मुआशी मसाइल का सबब बन रहा है। Great pressure is being placed on arable land, water, energy and biological resources. काबिल काश्त अराजी, पानी, तवानाई और हयातियाती मसाइल पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। As the world population grows, अगर दुनिया की आबादी बढ़ती रही, the food problem will become increasingly severe. तो ग़िज़ा के मसाइल शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे, तो ग़िज़ा के मसाइल शदीद होते जाएंगे। The most vulnerable will be population is in developing countries. तरक्की पसीर ममालिक की आबादी को सबसे ज़्यादा खतरा दरपेश होगा। The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. गुज़िश्ता 25 बरस से फ़ीसद ग़िज़ाई अजनास की मिक़दार में कमी हो रही है। Certainly, यकीनन with a 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will be reach unprecedented levels. यकीनी तौर पर रोज़ाना दुनिया की आबादी में इजाफा 1/4 मिलियन यानी 25 लाख अफराद की इजाफा की वजह से अनाज और दीगर तमाम इक़साम की ग़िज़ा की तलब नाकाबिले मिसाल हद सतह तक पहुँच जाएगी। The below world population and its growth trends are given. नीचे दुनिया की आबादी और एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स आर गिवन और इसकी जो इसमें इजाफा हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। 10,000 years ago 10 million people यानी 10,000 साल पहले जो थी आबादी वो 10 मिलियन लोग थे। बाय 1815 पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन। 1850 में आबादी का जो तनासब था वो 1 बिलियन था।
80 more years to reach 2 billion in 1930, जबकि 1930 में जब इसे मज़ीद 80 बरस गुजर गए तो उस वक्त दुनिया की आबादी 2 बिलियन थी। 45 years it double again 4 बिलियन in 1975, जबकि 45 साल के मज़ीद बाद इसकी आबादी 4 बिलियन हो गई, जो कि 1975 यानी 1975 में इसकी आबादी दुनिया की 4 बिलियन थी। 12 years to reach 5 बिलियन, 12 साल बाद इसकी आबादी जो है वो 5 बिलियन हो गई, जो कि 1987 में यानी 1987 में था। 6 बिलियन इन 1999, 6 बिलियन हो गई इसकी 1999 में। बाय द ईयर 2020, जबकि साल 2020 में देयर विल बी 8 बिलियन, जबकि दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक जा पहुंची थी। पैसेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन करती हैं। देयर आर अबाउट क्वार्टर ऑफ अ मिलियन पीपल एडेड टू द प्लैनेट पर डे। रोजाना इस ज़मीन पर करीबन 1/4 मिलियन पीपल यानी 25 लाख अफराद का इजाफा होता है। दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज़ मोस्टली हैपनिंग इन डेवलपिंग नेशंस। आबादी में कई गुना शरह से इजाफा तरक्की पजीर अक़वाम में हो रहा है। तरक्की पजीर अक़वाम में हो रहा है। पैसेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 3 है, more than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. दुनिया को करीबन 99% से ज़्यादा ग़ज़ा ज़मीन से हासिल होती है, जबकि 1% से कम समुद्रों और दीगर आबी मसाकन से हासिल होती है। The continued production of an adequate food supply is directly dependent on a ample fertile land, fresh water and energy. मुनासिब ग़ज़ा की फराहमी के लिए मसलसल जारी पैदावार का बराह रास्त दारोमदार काफ़ी ज़ेर ज़मीन पानी, ताज़ा पानी और तवानाई पर होता है। As the human population grows, जैसा कि दुनिया की या इंसानों की आबादी में इजाफा होता है, द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज रिसोर्सेज आल्सो ग्रो। तो इन ज़रायों के जो तकाज़े हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इवन इफ, हत्ता के अगर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 141, even if these resources are never depleted, अगर ये वसाइल कभी भी कम ना हो, on a per capita basis they will decline significantly because they must be divided among more people. फीकस शरह की बुनियाद पर वो नुमाया तौर पर कम हो जाएं क्योंकि वो यकीनन ज़्यादा अफराद में तकसीम होंगे। At present, fertile agriculture land is being lost at an alarming rate. फिलहाल ज़राई ज़मीन खौफनाक शरह से ज़ाया हो रही है। The shortage of productive fertile land combined with the decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. पैदावार देने वाली ज़राई ज़मीन की कमी और इसके साथ ही ज़मीन की कमी होती हुई पैदावार सलाहियत में मौजूद ग़ज़ाई किल्लत की कमी की बड़ी वजह है। इसके बाद बेटा हम रीडिंग करेंगे पैसेज नंबर 4 और पैसेज नंबर 5 की। पैसेज नंबर 4 और 5 की इंग्लिश रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर 4 है बेटा, इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं इसकी। वाटर इज अनदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल क्रॉप्स। मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर is required during the growing season for cultivation. In fact, agriculture production consumes more fresh water than any other human activity. In many countries, people are facing shortage of fresh water. Competition for
competition for water resources among individuals, regions, and countries and associated human activities is already acquiring with the current world population. Water resources critical for irrigation or under great stress as populous cities, states, and countries require and withdraw more water from rivers, lakes, and aquifers every year. A major threat of maintaining future water supplies is continued overuse of surface and groundwater resources. Passage number 5 है बेटा. Fossil energy is another prime resource used for food production. Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by developed countries. The intensive farming technologies of the developed countries use massive amounts of fossil energy for fertilizers, pesticides, irrigations, and for machines as a substitute for human labor. In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than to reduce human labor inputs because. नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. पैसेज नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज पे 142 पे. Because fossil energy is a finite resource, its depletion accelerates as population needs for food and services escalate. Thus, cost of fuel increases everywhere. Cost of fuels increases everywhere. अब इसके बाद बेटा हम पैसेज नंबर 4 और 5 के जो वर्ड्स मीनिंग है उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि पैसेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं. क्लास है बेटा हमारी 10th. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट है. यूनिट नंबर है बेटा 12. टॉपिक है हमारा population growth and world food supplies. Growth and world food supplies. आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फ़राहमी. आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फ़राहमी. पैसेज नंबर है बेटा 4 and 5. वर्ड्स मीनिंग्स हैं. वर्ड्स मीनिंग में नंबर बेटा 17 है. ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में नंबर 17 है. एक्विटिक बोलते हैं AQUITIC.
एक्विटिक बोलते हैं आबी। नंबर 18 पे है। हैबिटेट्स बोलते हैं मसाकन, HABITATS, हैबिटेट्स बोलते हैं मसाकन। एडिक्यूट बोलते हैं मुनासिब या काफ़ी, ADEQUATE, मुनासिब या काफ़ी। नंबर 20 ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज बोलते हैं कमी को। 21 है सिग्निफिकेंटली, SIGNIFICANTLY, सिग्निफिकेंटली बोलते हैं नुमाया तौर पर, नुमाया तौर पर। 22 है नंबर कंबाइंड, इकट्ठा, COMBINED। 23 है नंबर 23 है करंट, CURRENT, करंट, मौजूदा। क्रिटिकल बोलते हैं अहम या ज़रूरी, CRITICAL, क्रिटिकल, अहम या ज़रूरी। नंबर 25 है मैसिव बोलते हैं ज़्यादा या बड़ी, मैसिव, MASSIVE, मैसिव बोलते हैं ज़्यादा या बड़ी। नंबर 26 पे है कल्टीवेशन बोलते हैं काश्तकारी, CULTIVATION, कल्टीवेशन बोलते हैं काश्तकारी। कंपटीशन बोलते हैं मुकाबला, COMPETITION, मुकाबला। कंज्यूम्स, खर्च करती है, कंज्यूम्स का मानिंग होता है खर्च करती है। नंबर 29 है फेसिंग का मानी होता है सामना करते हुए, फेसिंग, सामना करते हुए या मुकाबला करते हुए, मुकाबला करते हुए। नंबर 30 पे है एक्टिविटी, ACTIVITY, सरगर्मी या काम बोलते हैं एक्टिविटी को। नंबर 32 एंड 31, 32 एंड 33 हैं एक्सेलरेट्स बोलते हैं ACCELERATES, एक्सेलरेट्स, रफ्तार बढ़ाना, रफ्तार बढ़ाना। पेस्टिसाइड्स बोलते हैं PESTICIDS,
DES पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जरासीम कश अदवायात, जरासीम कश अदवायात, एक्वीफर्स बोलते हैं, AQUIFERs, एक्वीफर्स, चट्टानों, एक्वीफर्स का मानी होता है चट्टानों। अब शुरू से इनके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से आए हैं। क्लास है बेटा हमारी 10th, यूनिट नंबर 12 है, सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक, टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। आबादी में इजाफा, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी। पैसेज नंबर 4 एंड 5 है, पैसेज नंबर 4 एंड 5 है। ओवरऑल वर्ड मीनिंग में नंबर 17 है। एक्वेटिक बोलते हैं आबी को, हैबिटेट्स बोलते हैं मसाकन को, एडिक्यूट बोलते हैं मुनासिब या काफ़ी को, शॉर्टेज बोलते हैं कमी को, सिग्निफिकेंटली बोलते हैं नुमाया तौर पर, कंबाइंड इकट्ठा, करंट का मानी होता है मौजूदा, क्रिटिकल अहम या ज़रूरी, मैसिव ज़्यादा बड़ी, कल्टीवेशन बोलते हैं काश्तकारी को, कंपटीशन बोलते हैं मुकाबला को, कंज्यूम का मानी होता है खर्च करती, फेसिंग का मानी मुकाबला करते हुए, सामना करते हुए, मुकाबला करते हुए या सामना करते हुए, एक्टिविटी का मानी होता है काम या सरगर्मी, एक्सेलरेट्स का मानी होता है रफ्तार बढ़ाना, रफ्तार का बढ़ाना, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं जरासीम कश अदवायात, और एक्वीफर्स का मानी होता है चट्टानों, एक्वीफर्स चट्टानों या चट्टाने, एक्वीफर्स का मानी चट्टानों या चट्टाने। अब हम पैसेज नंबर 4 एंड 5 की जो ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन, उसके साथ इनकी रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर 4 है बेटा, पैसेज नंबर 4 है, वाटर इज़ अनदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल क्रॉप्स, तमाम फसलों के लिए दूसरी अहम चीज़ पानी है। मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ सीजन फॉर कल्टीवेशन, नशोमा के मौसम में काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट दरअसल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंज्यूम्स मोर फ्रेश वाटर दैन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी, दरहकीकत किसी भी और सरगर्मी की निस्बत ज़राई पैदावार के लिए ज़्यादा पानी की ज़्यादा मकदार में ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, पीपल आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, बहुत से ममालिक में लोगों को ताज़ा पानी की किल्लत का मसला दरपेश है। कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स, रीजन्स एंड कंट्रीज़ and associated human activities is already occurring with the current world population, दुनिया की मौजूदा आबादी में अफराद, इलाकों और मुल्कों और बाहम मुतल्लिका इंसानी सरगर्मियों के लिए पानी की खातिर पहले ही मुकाबला जारी है। वाटर रिसोर्सेज critical for irrigation are under great stress as populous cities, states and countries require and withdraw more water from rivers, lakes and aquifers every year. आबी वसाइल जो कि आबपाशी के लिए ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, क्योंकि गुंजान आबाद शहरों
क्योंकि गुंजानबाज शहरों, रियासतों और मुल्कों को पानी की ज़रूरत है और वो हर साल दरियाओं, झीलों, चट्टानों में मौजूद आबी ज़खायर से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। A major threat to maintaining future water supplies is the continuing overuse of surface and groundwater resources. मुस्तकबिल के लिए पानी की फराहमी बरकरार रखने में बड़ा खतरा सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन मौजूद आबी वसाइल की ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल है। पैसेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 5 है, fossil energy is another prime resource used for food production. फोसल एनर्जी ग़ज़ा की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला दूसरा अहम ज़रिया है। Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries. दुनिया में पाई जाने वाली फोसल एनर्जी का करीबन 80% हिस्सा तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। The intensive farming technology of the developed countries use massive amounts of fossil energy for fertilizer, pesticides, irrigations, and for machines as a substitute for human labor. तरक्की याफ्ता ममालिक की बढ़ती हुई काश्तकारी की टेक्नोलॉजी लेबर के मुतबादिल तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदारों में फोसल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than to reduce human labor inputs. तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसानी लेबर को इंसानी मशक्क़त को कम करने की बजाय फोसल एनर्जी इब्तदाई तौर पर पैदावार की शरह बरकरार रखने के लिए खादों और आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Because fossil energy is a finite source, its depletion accelerates as population needs for food and services escalate. चूँकि फोसल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है, आबादी में के लिए ग़ज़ा और खिदमात की ज़रूरत पड़ने से इसकी कमी में इजाफ़ा होता है। Thus cost of fuels increases everywhere. इस तरह हर जगह ईंधन की लागत बढ़ती है। बेटा पैसेज नंबर जो है ना 6 की इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं। Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agriculture production. For instance, fertilizers. For instance का मतलब होता है मिसाल के तौर पर fertilizers enhance the fertility of eroded soils, but humans cannot make topsoil. Indeed, fertilizers made from infinite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. A productive and unsustainable agriculture system depends on maintaining the integrity of biodiversity. Last passage है इसका, passage number 7 and the last one. Strategies for the future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources. Indeed, for food production, yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future
generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum of world population should be less than 2 billion. Therefore, more now until an optimum population is achieved. Strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. Maintaining a sound and productive environment all for is essential. Essential का मानी होता है ज़रूरी. बेटा ये हमने पेज नंबर 142 के ऊपर जो कि हमारा लेसन है आज का, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी, इसके दोनों पैसेज की हमने इंग्लिश रीडिंग की है जो कि पैसेज नंबर 6 और 7 थे. अब हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में अवेयरनेस देते हैं. क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश. इंग्लिश टेक्स्ट यूनिट नंबर है 12. टॉपिक है हमारा POPULATION, population growth and world food supplies. Population growth and world food supplies. आबादी में इजाफा, दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी. क्लास है बेटा हमारी 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 12 है. और टुडेज़ टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी. आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी. पैसेज नंबर जो 6 एंड 7 है, इसके वर्ड्स मीनिंग है ओवरऑल वर्ड्स मीनिंग में ये जो हमारा नंबर होगा ये 34 है बेटा. वाइटल का मानी होता है ज़रूरी, VITAL, वाइटल यानी अहम या ज़रूरी. नंबर 35 है प्रेजेंटली, मौजूदा तौर पर, PRESENTLY, प्रेजेंटली, मौजूदा तौर पर. नंबर 36 है मेंटेनिंग का मानी होता है बरकरार रखते हुए, MAIN, मेन, TAINING, बरकरार रखते हुए, बरकरार रखते हुए. नंबर 37 है डिपेंड्स, इन्हिसार करता है, DEPENDS, इन्हिसार करता है. टॉप सॉइल का मतलब बेलाई ज़मीन, टॉप सॉइल SOIL, सॉइल का मतलब होता है बेलाई ज़मीन. नंबर 39 है कंपनसेट, तलाफ़ी करना यानी नुकसान पूरा करना. कंपनसेट COMPENSATE, तलाफ़ी करना.
तलाफ़ी करना, या इसका मानी होता है नुकसान पूरा करना, नुकसान पूरा करना। नंबर 40 है इंडीड, बिलाशुबा। 41 है फर्टिलिटी, FERTILITY, इट मीन्स होता है जरहेज़ी। नंबर 42 पे मैनेजमेंट, MENAGEMENT, मैनेजमेंट बोलते हैं इंतज़ामिया। नंबर 43 है इम्प्रूव्ड, बेहतर किया, IMPROVED, बेहतर किया या बेहतर बनाया। नंबर 44 है अफेक्टिव, EFFECTIVE, इफेक्टिव यानी मौसर। नंबर 45 है थ्रू आउट बोलते हैं THROUGHOUT, थ्रू आउट बोलते हैं भरपूर या मुकम्मल, भरपूर या मुकम्मल। नंबर 46 47 है येट, ताहम फिर भी, येट ताहम फिर भी। साउंड बोलते हैं मजबूत या सेहतमंद को, SOUND, साउंड, मजबूत या सेहतमंद। नंबर 48 है अनलेस, जब तक के ना, अनलेस जब तक के ना। नंबर 40 एंड द लास्ट नंबर 50 है असेंशियल बोलते हैं ज़रूरी को, ESSENTIAL, एसेंशियल बोलते हैं लाजमी या ज़रूरी। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, स्टैंडर्ड का मानी होता है मेयार, STANDARD, स्टैंडर्ड का मानी होता है मेयार। अब शुरू से इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करेंगे। क्लास है बेटा 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 12, टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़ज़ा की फ़राहमी। पैसेज नंबर 4, 6 एंड 7 है वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले वाइटल, अहम या ज़रूरी, वाइटल अहम या ज़रूरी। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटली, मौजूदा तौर पर, मेंटेनिंग बरकरार रखते हुए, डिपेंड्स इन्हिसार करता है, डिपेंड्स इन्हिसार करता है, टॉप सॉइल बलाई ज़मीन, कंपनसेट नुकसान पूरा करना, तलाफ़ी करना, इंडीड बिलाशुबा, फर्टिलिटी बोलते हैं जरहेज़ी को, मैनेजमेंट बोलते हैं इंतज़ामिया को, इम्प्रूव बेहतर किया, अफेक्टिव मौसर, थ्रू आउट मानी होता है भरपूर या मुकम्मल, येट ताहम या फिर भी, साउंड सेहतमंद या मजबूत, अनलेस का मानी होता है जब तक के ना, अनलेस का मानी होता है जब तक के ना, एसेंशियल का मानी होता है लाजमी या ज़रूरी, स्टैंडर्ड का मानी होता है मेयार, स्टैंडर्ड का मानी होता है मेयार। बेटा ये आपके वर्ड्स मीनिंग भी मुकम्मल हो गए। अब हम पैसेज नंबर जो 6 एंड 7 है उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पेज नंबर है पेज नंबर है 142, पैसेज नंबर है 6, पेज नंबर 142, पैसेज नंबर है 6। Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot be produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw material for sustained agriculture production. यकीनन
बेहतर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेजमेंट करने और वसाइल इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे इन अहम कुदरती वसाइल की लामहदूद फरावानी नहीं हो सकती जो कि रुकावट का शिकार ज़रूरी पैदावार के लिए खाम माल की हैसियत रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ एरोडेड सॉइल्स बट ह्यूमंस कैन नॉट मेक टॉप सॉइल। मिसाल के तौर पर खादें कटी फटी ज़मीन की जरहेज़ी में इजाफा करती हैं, मगर इंसान सतह ज़मीन का ऊपरी हिस्सा नहीं बना सकते। इंडीड, बिलाशुबा, दरअसल फर्टिलाइज़र्स मेड फ्राम infinite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded soil। दरअसल मौजूदा दौर में कटी पटी सतह ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए फोसल ईंधन की महदूद ज़राए से बनी हुई खादें इस्तेमाल हो रही हैं। A productive and sustainable agriculture system depends on maintaining the integrity of biodiversity। एक पैदावारी और नाकाबिले इस्लाह ज़राई सिस्टम का दारोमदार माहौल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की सालमियत पर है। पैसेज नंबर 7 की उर्दू ट्रांसलेशन हम करने लगे हैं। लास्ट पैसेज है, स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production। मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमलियों की बुनियाद ज़मीन, आबी तवानाई के और हयातियाती वसाइल की बका और मख्तात मैनेजमेंट पर होनी चाहिए। Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for the future generation unless the growth in the human population is stimulously curtailed। फिर भी इन इक़दामात में से कोई भी आने वाली नस्लों के लिए मुनासिब ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएगा जब तक साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफ़ा को कम नहीं किया जाता। Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion। कई मतालियात से तस्दीक हुई है कि दुनिया भर में कदरे आला मेयार ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 2 खरब से कम होनी चाहिए। Therefore, इसलिए from now until optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy and biological sources are to be implemented effectively। इसलिए अभी से ज़्यादा शराबादी हासिल होने की ज़मीन, आबी तवानाई और हयातियाती वसाइल को मौसर तौर पर इस्तेमाल करना होगा। Maintaining a sound and productive environment all over is essential। हर तरह अच्छा और पैदावारी माहौल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी या बहुत लाजमी है। ये बेटा आपकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। ट्रांसलेशन ये मुकम्मल हो गई है। अब ट्रांसलेशन मुकम्मल होने के बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करवाएंगे। क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर है 12, यूनिट नंबर है 12। पॉपुलेशन ग्रोथ, POPULATION, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी। आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर
the following questions. दर्ज झेल सवालत के जवाब दीजिए। बेटा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात की अवेयरनेस दे दें कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे। हर क्वेश्चन आंसर जो होगा वो 2 नंबर पर मुश्किल होगा। 2 × 5 10 मार्क्स के आएंगे। टोटल ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आएंगे वो 8 आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है और ये 10 नंबर के आएंगे। 10 मार्क्स होंगे इसके। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, which areas are most affected by incessant growth in population? Which areas are most affected? Which areas are most affected? Which areas are most affected by incessant growth? By incessant CESSANT growth in population. In population, POPULATION. Which areas are most affected by incessant growth in population? आबादी में इजाफे से कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ आर मोस्ट अफेक्टेड। डेवलपिंग कंट्रीज़ DEVELOPING, डेवलपिंग कंट्रीज़ COUNTRIES, countries are most affected 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 by incessant CESSANT growth in population. Growth in population, POPULATION। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। Which areas are most affected by incessant growth in population? आबादी में मुसलसल इजाफे से कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं? Developing countries are most affected by incessant growth in population. आबादी में मुसलसल इजाफा की वजह से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why are developing countries going to suffer more due to overpopulation? Why are developing countries suffer? Why are developing countries suffer? Why are developing countries suffer more due to overpopulation? Due to overpopulation, POPULATION। इसका आंसर होगा Why are developing countries suffer more due to overpopulation? तरक्की पजीर ममालिक कसरत आबादी की वजह से ज़्यादा मुतासर क्यों होंगे या क्यों हैं? The population of developing countries is increasing rapidly. इसका आंसर है बेटा, the population of developing countries is increasing rapidly, is increasing
rapidly, RAPIDLY, तरक्की पजीर ममालिक की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन कॉज सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओवर पॉपुलेशन POPULATION, overpopulation cause serious economic 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 problems, कसरत आबादी की वजह से शदीद नौइयत के मसाइल, मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं. There is also an acute shortage of food. There is also an acute acute shortage shortage of food. ग़िज़ा की किल्लत भी पैदा होती है. ग़िज़ा की किल्लत भी पैदा होती है. दोबारा से इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. तरक्की पजीर ममालिक कसरत आबादी की वजह से ज़्यादा मुतासर क्यों होंगे. द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली. तरक्की पजीर ममालिक की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है. ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा जो आबादी है, कॉज सीरियस इकॉनमिक प्रॉब्लम, उससे शदीद नौइयत के मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. इसके साथ साथ खुराक की किल्लत के भी मसाइल हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड malnutrition. What is the major cause? What is the major cause of food shortage and malnutrition. Nutrition, NETRION. ग़िज़ाई किल्लत और नाक़स तग़ज़िया की बड़ी वजह क्या है. इसका आंसर होगा, the major cause of food shortage and malnutrition is overpopulation. The major cause of food shortage and malnutrition is overpopulation. POPULATION. ग़िज़ाई किल्लत और नाक़स तज़किया की बड़ी वजह कसरत आबादी है. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. How are water resources under great stress? How are water resources great stress? इसका आंसर होगा, how are water resources under great stress? How are water resources under great stress? पानी के वसाइल किस तरह ज़ेर दबाव हैं. Water resources are under great stress as overpopulated. Water resources
are under great stress as overpopulated populated cities, states and countries require and withdraw more water from rivers. Require, require, require and withdraw more water from rivers, lakes and streams streams every year. दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस? आबी वसाइल किस तरह ज़्यादा दबाव के नीचे हैं? इसका आंसर है वाटर रिसोर्सेज आर under great stress as overpopulated states and countries require and withdraw more water from rivers, lakes and streams every year. आबी वसाइल बहुत ज़्यादा दबाव में हैं क्योंकि गुंजानाबाद शहर, रियासतें और ममालिक ज़रूरत की वजह से दरिया, झीलों, चट्टानों के नीचे मौजूद ज़राई आबी ज़खायर से ज़्यादा पानी निकालते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके मुकम्मल हो गए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टार्टिंग करते हैं। एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी। आबादी में इजाफा और दुनिया में ग़िज़ा की फराहमी। क्वेश्चन आंसर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जे झैल सवाल की जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो आएगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसके 10 मार्क्स होंगे और टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 5 × 2 ये 10 मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ depletion of fossil energy? What is the effect of depletion of fossil energy ENERGY। इसका आंसर है फोसिल एनर्जी में कमी के नतीजे में फोसिल एनर्जी में कमी से क्या असरात मरतब होते हैं एज एन इफेक्ट ऑफ। इसका आंसर होगा एज एन इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ फोसिल एनर्जी, depletion of fossil energy
fossil energy. Cost of fuel increases every year. Cost of fuel increases everywhere. As an effect of depletion of fossil energy, cost of fuel increases everywhere. फॉसिल एनर्जी में कमी के नतीजे में हर जगह ईंधन की लागत बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा. What is the limitation of improved technology? What is the LIMITATI limitation of improved technology, TECHNOLOGY. What is the limitation of improved technology? जदीद टेक्नोलॉजी की हद क्या है? The improved technology cannot produce an unlimited flow of natural resources. The improve इसका आंसर है बेटा the improved technology, TECHNOLOGY, technology cannot produce produce an unlimited flow of natural resources, flow of NATUR natural resources, RESOURCES resources for SUS TAINED sustained agriculture production, agriculture CULTURAL production PRODUCTION. दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी? जदीद टेक्नोलॉजी की हद क्या है? द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जदीद टेक्नोलॉजी लामहदूद कुदरती वसाइल पैदा नहीं कर सकती फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लामहदूद बहाव पैदावार के बहाव के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 है. How can sufficient food supply be made possible for the future generation? How can sufficient SUFF ICIENT sufficient food supply how can sufficient food supply made possible for the future generation, made possible POSSIBLE made possible for the future generation
मुस्तकबिल की नस्ल के लिए काफ़ी खुराक की रसद कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? वी कैन मेक द sufficient food supply possible for the future generation by curtailing human population simultaneously. We can make the, इसका आंसर है, we can make the sufficient food supply possible for the future generation by curtailing curtailing human population population simultaneously SIMUSLY. हम अज़ाफ़ी आबादी में इजाफ़ा पर काबू पाकर आने वाली नस्लों के लिए मुनासिब हद तक ग़िज़ाई फ़राहमी मुमकिन बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। What strategies should be adopted for safe future? What strategies, strategies strategies should be adopted adopted for safe future FUTURE। महफूज मुस्तकबिल के लिए कैसे मनसूबाबंदी की जानी चाहिए? वी शुड इम्प्लीमेंट effectively the strategies to conserve and manage all types of we should, इसका आंसर है बेटा, we should control our population, we should control our population POPULATION। हमें अपनी आबादी पर काबू पाना चाहिए up to an optimum level for safe future, for safe future। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा से देखते हैं। व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर? मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कौन सी हिकमत अमली पर अमल पैरा होना चाहिए? वी शुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, हमें अपनी आबादी पर काबू रखना चाहिए अप टू एन ऑप्टिमम लेवल, एक ख़ास बुलंद तरीन सतह तक, फॉर सेफ फ्यूचर, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें इस पर अपनी आबादी पर काबू रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 12 है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल सी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस with words beginning with prefix dix या अन ये डिक्स, ये दोनों जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ आपने इनको फिलअप करना है। जैसे माई शू इज़ डैश नॉट टाइड, माई शू इज़ डैश नॉट
टाइड, तो ये इसका करेक्ट होगा माई शूज़ इज़ अनटाइड, UNTIED, ये पहला होगा। नंबर 2 पे चलते हैं, वकार। नंबर 2 पे चलते हैं, वकार डैश विद नाजिश डज नॉट एग्री। डज नॉट एग्री है ना, तो हमने इसको खत्म करके जो एग्री के साथ या तो अन लगाना है या तो डिस लगाना है, जो करेक्ट होगा वो लगाना है, तो ये होगा डिसएग्रीज। वकार disagrees with Nazish, disagrees with Nazish। आगे नंबर 3 है, Ali is dash to beat me in the video game, not able, तो इधर आएगा unable लगा लेंगे, Ali is unable। इसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं, वही डैश his parents does not obey, तो इधर आ जाएगा disobeys, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा disobeys। सो पहले में अनटाइड आएगा, दूसरे में डिसएग्रीज आएगा, तीसरे वाले में अनेबल आएगा, चौथे वाले में डिसओबेज आएगा। नंबर 5 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 144 है। आवर टीचर सेज शी डज नॉट वांट डैश होमवर्क हैंडेड इन, नॉट फिनिश है तो ये आएगा अनफिनिश्ड, आ जाएगा FINISHED, अनफिनिश्ड आ जाएगा यहाँ। इसके बाद बेटा हम चलते हैं, इसके पेज नंबर 145 पे है, चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, हरफ अतफ, जो सही हरफ अतफ है उसका इस्तेमाल करना है आपने। जैसा कि नंबर 1 में है, ही कुड नॉट गो होम, ही हैड नो प्लेस टू गो, बट है, फॉर है और दो है, तो इधर आएगा फॉर, पहले में फॉर आएगा। नंबर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नंबर 2 है, डैश इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट, तो इधर आ जाएगा ऑल्दो इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 की तरफ, नंबर 3 है, डैश आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग सिंस बिफोर या एज, तो आएगा सिंस, सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग। इसके बाद ही लॉस्ट हिज जॉब डैश ही वॉज ऑफन लेट वाइल बिकॉज, और तो ये आएगा बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी खो दी, बिकॉज ही वॉज ऑफन लेट, क्योंकि अक्सर वो देर से आता था। नंबर 5 है, डैश आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू सिंस व्हेन या इफ़, ये इधर इफ आएगा, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैड मोर टाइम। इसके बाद चलते हैं बेटा नंबर 147 पेज नंबर है, पार्ट नंबर इसका सी पार्ट है। Underline the adverb clause in the following sentences and state whether each is an adverb clause of time, place, reason, purpose, result, manner, comparison, condition or an concession। तो आपने बताना है, इसमें अंडरलाइन करना है आपने, जस्ट अंडरलाइन करना है आपने वर्ब एडवर्ब क्लॉज को। तो पहले वाला पढ़ते हैं, द फ्राइटेंड द चाइल्ड रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो इसमें आएगा एज फास्ट एज ही कुड। फर्स्ट वाले में एडवर्ब क्लॉज होगा एज फास्ट एज ही कुड। नंबर 2 है, इवन इफ दे हरी दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम, अगर वो जल्दी भी करते तो वहाँ वक्त पर ना पहुँच सकते, तो ये आएगा दे मे हरी दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम। ये नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3 की तरफ चलती हैं, द प्लेयर इज आउट ऑफ द मैच बिकॉज ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, खिलाड़ी जो था वो मैच से बाहर हो गया क्योंकि उसने जख्मी कर लिया, तो ये आएगा बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, तो ये एडवर्ब क्लॉज होगा बिकॉज ही हैड हर्ट हिमसेल्फ। नंबर 4 की तरफ चलते हैं,
इफ़ शी रिकवर्स क्विकली शी विल जॉइन द टीम, अगर वो तेज़ी से सेहतयाब हो जाए तो वो टीम में शामिल हो जाएगा। नंबर बल्कि 4 है, इफ़ शी रिकवर्स क्विकली शी विल जॉइन द टीम, तो ये आएगा इफ़ शी रिकवर्स क्विकली, ये इसमें एडवर्ब क्लॉज पहले आ गया। इफ़ शी रिकवर्स क्विकली, तो ये एडवर्ब क्लॉज होगा। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द स्पीकर वॉज सो अब्जॉर्ब होता मसरूफ़ होना, महव होना, गुम होना इन हिज स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम, मुकर्रर तकरीर करने में इस कदर महव था कि वो वक़्त भूल गया। सो दैट द स्पीकर वॉज सो अब्जॉर्ब्ड इन हिज स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम, जाएगा दैट ही शी। नंबर 5 है दैट शी फॉरगॉट द टाइम, दैट दोबारा से देखते हैं। द स्पीकर वॉज सो अब्जॉर्ब इन हिज स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम, मकर्रर अपनी तकरीर में इस कदर मसरूफ़ था कि वक़्त का उसको याद न रहा, तो यह आएगा दैट ही फॉरगॉट द टाइम, तो ये होगा इसमें एडवर्ब क्लॉज। अब हम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शी switched on the television so that she could listen to the news, उसने टेलीविज़न ऑन किया ताकि वो खबरें सुन सके, so that she could listen the news, तो इधर आएगा so that she could listen the news, ये इसमें एडवर्ब क्लॉज होगा। नंबर 7 की तरफ चलती हैं। they left before the concert ended, महफिल मौसीकी ख़त्म होने से पहले वो चले गए। बिफोर द कॉन्सर्ट एंडेड, यहाँ आएगा बिफोर द कॉन्सर्ट एंडेड, ये इसमें एडवर्ब क्लॉज होगा। इसके बाद चलते हैं। ही एक्टेड एज इफ़ ही ओन्ड द कार, इसने यूज़ हर किया जैसे कि कार इसकी मिल्कियत है। एज इफ़ ही ओन्ड द कार, एज इफ़ ही ओन्ड द कार, ये आ जाएगा। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वेयर द रोड्स बेंड्स डेंजरसली बी मोर केयरफुल, तो ये आएगा वे द रोड्स बेंड्स डेंजरसली, ये इसमें एडवर्ब क्लॉज पहले आया हुआ है। वे द रोड्स बेंड्स डेंजरसली बी केयरफुल। लास्ट वन है ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स, जब उसने बीए कर लिया तो उसे एक अच्छी मुलाजिमत मिल गई। ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही, इसमें जो एडवर्ब क्लॉज होगा व्हेन ही ग्रेजुएट्स। इसके बाद लास्ट वन है मैच द टू क्लॉजेस एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, दोनों क्लॉजेस को मिलाएं और एक मानी फिक्रा बनाइए। तो इसमें होगा नंबर 1 है द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई, तो इसमें क्या होगा। वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। द रेन स्टार्टेड, इसको आ जाएगा, ये इसका डी पार्ट की तरफ आ जाएगा। द रेन स्टार्टेड वाइल आई वॉज गोइंग होम, जब मैं गाड़ी से घर वापस आ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। इसके बाद नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई रोट मैनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें लिखी। बिफोर आई वॉज अवॉर्डेड अ लिटरेचर प्राइज, बिफोर आई, हाँ तो ये नंबर 2 का नंबर ई हो जाएगा। बिफोर आई वॉज अवॉर्डेड द लिटरेचर प्राइज। नंबर 3 दे हैड टू कैंसल द मीटिंग, उन्हें मीटिंग कैंसिल करना पड़ी क्योंकि because the director did not show up, जो थर्ड वाले का होगा वो होगा बी पार्ट, because the director did not show up। नंबर 4 है you won't succeed, तुम कामयाब नहीं हो सकते। you won't succeed if you do not try hard, तो ये आ जाएगा if you do not try hard आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 है although it was raining, अगरचे ये बारिश हो रही थी, he went out with an umbrella, वो छतरी के साथ बाहर चला गया, ठीक है। ये बेटा आपका लेसन नंबर जो यूनिट नंबर 12 है वो भी आपका फिनिश हो गया है।
इंशाल्लाह इसके बाद हम यूनिट नंबर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 13 जो कि लास्ट वन है। अल्लाह हाफिज़।